नेपाल से हमारे वरिष्ठ मित्र आचार्य निर्मलमणि अधिकारी जी, Dr. Nirmalmani Adhikari ji, Associate Professor of Media and Communication, Department of Language and Mass Communication, School of Arts, Kathmandu University, Hattiban, Lalitpur, Nepal. Nationality Nepal. Uh, Education PhD in Communication, Nepal Sanskrit University 2012. MPhil in English, Pokhara University 2007. MA in Mass Communication and Journalism, Purvanchal University 2003. BSc, Tribhuvan University 2000. Post PhD Academic Research, Research Fellow, Mekhnal Chaturvedi, Makhanlal Chaturvedi, National University of Journalism and Communication, Bhopal, Madhya Pradesh, India. Academic administrative position in university colleges, Associate Professor of Media and Communication, Department of Language and Mass Communication, School of Arts, Kathmandu University, Nepal. Since 16th July 2018. Associate Assistant Professor of Media Studies, Kathmandu University, 2008 July to 2018 July. The academic position of assistant professor requires teaching various courses including journalism, media, research and communication theory. Coordinator of media studies from 1st August 2013 to 16th August 2016. Member Secretary, Media Studies Subject Committee, Kathmandu University from February 2014 to February 2017. Coordinator, Journalism and Mass Communication Curriculum Design Committee for Western University, July 2013. Member, Media Studies Subject Committee, School of Arts, Kathmandu University, July 2007 to February 2014. Coordinator, Media Studies Curriculum Development Committee, Department Language and Mass Communication, Kathmandu University 2011 to 12. Visiting Scholar, Department of Studies, Communication and Journalism, UGC UPE Project, University of Mysore, Karnataka, India. Visiting Faculty, Makhanlal Chaturvedi, National University of Journalism and Communication, Bhopal, Madhya Pradesh. Department of Journalism, Mass Communication, Dev Sanskriti Vishwavidyalay, Haridwar. PhD Master Research Supervisor, Supervisor and Co-Supervisor for dissertation thesis of MA students and PhD scholars. Additional responsibilities in universities. Convener, International Seminar on Role of Media and Promoting India-Nepal Relation, organized by the Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism. Publications, Amsar Adhyayan, Kathmandu, विष्णको दृष्टि रा धर्म को धराना काठमांडू etc. I am grateful to Dr. Hariram Prasad and the Pitapur Rajas Government College. I would like to appreciate Ayodhya Research Center as well, and my namaskar goes to all the friends from different countries. I had privilege to visit Pitapur Rajas Government College, Kakinada, and I participated in a conference on Ramayana, and this time we are here in an international webinar on Global Encyclopedia of Ramayana. So I am putting my point of views from Nepal's perspective. अब से मैं हिंदी में ही बोलूंगा, ज्यादातर वहाँ हिंदी समझने वाले हैं ऐसा मुझे पता चला है। तो नेपाल जो हिमवद खंड का केंद्र है, भारतवर्ष का ये अभिन्न अंग और केंद्र है। जो भरतगण थे, वो भरतगण का जो वैदिक गण थे, उनका जो विचरण स्थली था, उनमें से ये हिमवद खंड नेपाल भी था। और बहुत महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ स्मरण करने की आवश्यकता है कि जो रामायण है, सबसे पहले जिन्होंने लिखा आदि कवि वाल्मीकि हैं, उनका आश्रम नेपाल में है। उसमें
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और नेपाल से तत्कालीन महाराजा श्री 5 महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, वो दोनों वहां समुपस्थित होकर उन्होंने वहां उद्घाटन भी किया था। तो वाल्मीकि का आश्रम यहाँ है। फिर जो रामायण, तो सैकड़ों रामायण है, उनमें से जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, एक तो वाल्मीकि रामायण हुआ, दूसरा हुआ व्यास जी का अध्यात्म रामायण। और जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, वैसे व्यास तो हर द्वापर युग में आते हैं। और इस वक्त जो कृष्ण द्वैपायन व्यास है, उनका जो जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, वो भी नेपाल में है। व्यासनगर एक जगह है, वहाँ पराशर ऋषि का आश्रम, व्यास ऋषि का आश्रम, दोनों वहाँ है। तो नेपाल इस तरह से देखा जाए तो रामायण से जो भी संबद्ध कई घटनाएं यहाँ हैं, कई स्थली यहाँ हैं। अभी आप लोगों ने इंटरनेशनल मीडिया से सुना होगा कि नेपाल में किस तरह से नेपाल की जो राजनीति है वो भी राममय अभी हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से नेपाल में बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ राम के संदर्भ में बहुत चर्चा, परिचर्चा, चिंतन, मनन अभी यहाँ हो रहा है। तो नेपाल में अगर देखा जाए तो रामायण की नेपाली अपना संस्करण भी है। कई लोगों को ये पता होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा। मेरे पास जो ये पुस्तक है, ये है भानुभक्त आचार्य का लिखा हुआ रामायण। वो किस तरह से प्रारंभ करते हैं, मैं एक दो श्लोक आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोक को गरौं हित भनी, ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। सो ये प्रारंभ करते हैं कि एक दिन नारद जब सत्यलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रसन्न किया, और फिर जब ब्रह्मा जी ने पूछा क्या प्रयोजन है तुम्हारा यहाँ आने का, तो उन्होंने फिर जो जिज्ञासा रखा, उसी की समाधान में ब्रह्मा जी ने पूरा रामायण बता दिया। इस तरह से ये आता है। और फिर नेपाल में कई सारी वो भाषाएं हैं। नेपाली प्रमुख भाषा है, राष्ट्रभाषा है, सबको जोड़ने वाला भाषा है। और यहाँ स्थान स्थान पे कई भाषाएं हैं। जैसे उनमें से राजधानी काठमांडू में जो नेवारी भाषा, नेपाल भाषा भी जिसको कहा जाता है, वो जो चलता है, उसमें भी एक कवि हैं सिद्धिदास, उन्होंने भी रामायण लिखा है। तो नेपाल में बहुत समृद्ध परंपरा यहाँ है। श्रवण कुमार से जुड़ा हुआ यहाँ स्थली है, सीताजी की ये जन्मस्थली है ही। तो वनवास के क्रम में भी यहाँ पर कई सारे जगह हैं। और कई नेपाली ऐसा मानते हैं कि जो अयोध्या था, वो अयोध्या नेपाल सरहद में, नेपाल की सीमा में वो है। तो इसमें तो बहुत सारा अनुसंधान होना बाकी है। सारा जगत राममय है। हम तो ये जानते हैं कि जिसने राम का नाम उल्टा पुल्टा भी लिया, उसको भी बहुत पुण्य प्राप्त हुआ। तो सारा जगत में अगर आप देखेंगे, भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में और कई दूसरे देशों में अब राम के लिए नया जो लहर चल रहा है, वो बहुत ही उत्साहजनक है। भारत में शताब्दियों बाद जो एक मंदिर वहां बनना था अयोध्या में, वो अभी बन रहा है। कुछ दिनों बाद भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, ऐसे हमने समाचार में देखा। तो यहाँ नेपाल में भी सब लोगों को भगवान श्री राम की जो ये जय जयकार हो रहा है, आदर्श राज्य व्यवस्था कैसा हो, आदर्श परिवार कैसा हो, उनको तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ये जो राम को लेकर नया जो जागरण चल रहा है नेपाल में, हम सब लोग बहुत खुश हैं। राम हम सब के हृदय में है, माता सीता हम सब के हृदय में है। और इसको एकेडमिकली, प्राज्ञिक तरह से भी
इसको आगे बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है, ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण जो बन रहा है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूं। और नेपाल से जितना भी हम सहयोग कर पाए उसके लिए हम तत्पर हैं। ये तत्परता व्यक्त करते हुए और आज की आयोजन के लिए आप लोगों को अभिनंदन करते हुए मैं अपना संक्षिप्त ये वक्तव्य यहीं अंत्य करता हूं। नमस्कार।